Uh, just close your eyes today. Take a deep breath in and out. Take one more deep breath. And release. Take one more deep breath. Feel the air and say thank you. Keep your focus in between your eyebrows. Just close your eyes. Thank you, universe, for this divine time. Thank you, universe, for giving us the courage to practice this magic book and bring gratitude into our lives. Thank you, universe, for giving us the strength and the courage to make the practice a habit and live a fulfilling life. Thank you for all the abundance that is flowing into our lives and the blessing which we are getting. And day by day, we are becoming happier. Thank you for this healthy, fit, and energetic body, which is getting better and better and healing every day because we have come into the practice of gratitude. So, thank you for all that you have given and all the magics that are happening in our lives. Thank you for making me a channel of blessings so that I enlighten other people's life and help them live a good and healthy life. Thank you. Thank you. Thank you. You can open your eyes. So कल वाली प्रैक्टिस कौन सी थी और किसने किसने की? मंजू मैम, यू आर लुकिंग वेरी गुड टुडे एंड डिफरेंट. थैंक यू मैम. किया, प्रैक्टिस किया मैम. ग्रेट. बट वो व्हाट यू से द पेपर निकाल के नहीं किया, माइंड में किया प्रैक्टिस. Okay, great. See, if you remember your dreams, if you remember those dreams, what you have written, you can definitely do it. You can definitely do it orally. It's not necessary that you have to remove the paper. पेपर उसके लिए बोलते हैं कि आपको थोड़ा विजुअलाइजेशन भी हो जाए साथ में जब आप रीड कर रहे हो. वेरी गुड धारा जी, इफ यू हैव आल्सो डन, दैट्स ग्रेट. ग्रेट, एवरीवन इज प्रैक्टिसिंग. देखो, प्रैक्टिस ही आपको आगे लेके जाएगी. अगर आप लिखोगे नहीं, प्रैक्टिस करोगे नहीं ना, यू विल नॉट गेट द रिजल्ट्स. All our results depend upon our practices, and that is more important. अगर कोई भी प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस नहीं हो पा रही है, कुछ इश्यू है, कोई चीज समझ में नहीं आ रहा है, यू कैन मैसेज मी ऑन द पर्सनल विंडो ऑल्सो, नॉट एन प्रॉब्लम. देन डेफिनेटली आई विल हेल्प यू आउट टू हाउ टू फ्रेम द सेंटेंसेस, अगर सेंटेंसेस फ्रेम करने को नहीं आ रहा है तो. ओके, सो टुडेज चैप्टर, लेट्स स्टार्ट. Let's see when Hatimji joined. We'll check it out afterwards. Okay, so yesterday's chapter was before your eyes. और आई होप आप सबने अपने ड्रीम्स अभी रोज इसके फॉरवर्ड, रोज एवरी डे, इट नोज नॉट ओनली यस्टरडेज और टुडेज प्रैक्टिस, ये आपको रोज आपके सामने रखने हैं. जो भी आपको चाहिए, यू हैव टू फील दैट यू हैव रिसीव्ड इट, यू हैव टू कीप इट इन फ्रंट ऑफ योर आईज. दैट इज व्हाट इट इज सेइंग. एंड टुडेज चैप्टर इज ऑल्सो मिराकल चैप्टर. आप लोग सोचते होंगे मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, what does that have with gratitude and magics, right? मन में ख्याल आया होगा ना ये. So the magical air that you breathe, and see the picture. Directly हम nature में पहुंच गए. Till now we didn't have any picture which was relating to the nature, and here she is relating you to the picture of the like elements, 5 elements
जो हमारे रहते हैं उससे रिलेट हो रहा है, राइट? एंड यू कैन सी द मैजिक हैपनिंग। एंड व्हाट इज दिस पिक्चर ऑफ? ट्री। देखो हमने, हाँ, यस मंजू मैम। ट्री ट्री। ट्री। इसके पहले हमने ट्री कहाँ पे देखा था? कौन से पिक्चर? फॉर For द the heart, heart. यस यस ताहिरा जी, हार्ट मैजिक, रियली हार्ट मैजिक जो चैप्टर था उसके अंदर भी उन्होंने हमको ट्री बताया था, बिकॉज दैट ट्री वाज गिविंग लाइक ऑक्सीजन सप्लाई करता है, दैट इज व्हाई। एंड टुडे आल्सो वी हैव वन ऑफ द एलिमेंट दैट इज द मैजिक एयर दैट यू ब्रीथ। ओके, मैजिक एयर दैट यू ब्रीथ। डू यू फील दैट जो भी हम हवा लेते हैं या श्वास लेते हैं, और what air is available to us, it is magical? किसको किसको फील होता है ये कि इट इज मैजिकल? हमने कभी आज तक उस चीज का शुक्रिया नहीं किया, राइट? So here it is saying it is quite possible to leave your home for a walk in the early morning air and return a different person, beguiled and enchanted. Mary Ellen Case, 1887, 1973, educator and writer. She writes that it is quite possible to leave your home for a walk. जब आप सुबह सुबह में कभी आपने 3 बजे की उठ के हवा ली है, कभी श्वास लिए जाके बाहर, वो श्वास लेके एक बार वो एक एक दिन उठो और जाओ बाहर, अलार्म लगाओ, भले फिर बाद में सो जाओ, अपन जाओ एक बार बाहर आपकी बालकनी में खिड़की के पास, और वो श्वास लो अंदर, आप देखोगे वो एयर के अंदर, और जो बाद में आप 7 o'clock तक भी लेते हो ना एयर में, बहुत फर्क आता है। इतनी अच्छी खुशबू आती है ना 3 साढ़े 3 बजे, जब आप अगर बाहर जाते हो आपकी बालकनी में और वो श्वास लेते हो। सो दैट इज व्हाट इट इज सेइंग कि अगर आप मॉर्निंग में वॉक के लिए निकलते हो, जैसे आप गए थे, आप रिटर्न में एक डिफरेंट पर्सन होके आते हो, बिकॉज यू हैव हैड फ्रेश फ्रेश ऑक्सीजन, फ्रेश एयर, एंड दैट हैज मेड यू एनर्जेटिक। तो यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन व्हेन, जब आप बाहर निकलते हो, हवा में निकलते हो, नेचर में निकलते हो। एंड इमेजिन करो हमारी जो एयर है उसके अंदर कितनी चीजें हैं। हमने साइंस पढ़ा था स्कूल में, साइंस में हमको बताया गया था कि एयर हैज हमनी हमनी गैसेस, किसको याद है? Two, यस। oxygen and carbon dioxide. ओके, व्हाट एल्स? देयर इज मोर टू इट। ऑक्सीजन इज देयर, कार्बन डाइऑक्साइड इज देयर, व्हाट एल्स इज देयर? देयर इज नाइट्रोजन, there is argon, there are more other gases, which are in that proportion कि अगर हमको उसमें ऑक्सीजन ज्यादा नहीं मिलेगा तो हम सांस नहीं ले पाएंगे, राइट? बट सी द यूनिवर्स का खेल देखो, कितना proportion, what we need is more in that, and what the plants need, that is available to them. And all the other living beings, whatever they require in that proportion, universe has made even magical air जो हम ब्रीथ करते हैं उसको भी कितने अच्छे तरीके से बनाया, राइट? So if someone had told me a few years back to be grateful for the air that I breathe, I would have thought that the person was crazy. आज जब हमने स्टार्ट किया आपको भी ऐसा ही लगा होगा कि हाउ डज एयर रिलेट टू योर ड्रीम्स, हाउ डज एयर कैन क्रिएट मैजिक्स फॉर यू, राइट? फील हुआ होगा ना कि एयर की वजह से हम कैसे सपने पूरे कर सकते हैं अपने। आज आपको समझ में आएगा कि जो हम हवा ब्रीथ करते हैं ना, उससे हम हमारे सपने कैसे पूरे कर सकते हैं। So I would have thought the person was crazy. It wouldn't have been a bit of sense to me. Why on earth would anyone be grateful for the air they breathe? क्योंकि तभी हम सोचते ही नहीं थे ना, उसकी इंपॉर्टेंस ही पता नहीं थी। नाउ दैट वी आर इन ग्रेटिट्यूड, हम 20-22 दिन से जो हम प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, तो हमको पता चल रहा है, राइट, कि हमारे पास क्या क्या नियामतें हैं। But as my life changed from using gratitude, the things that I took for granted and didn't give a second thought about became an absolute miracle to me. See, here she's saying, but as my life changed from using gratitude,
the things that I took for granted or didn't give a second thought about became absolute miracle to me. हमको भी जब हम ये जर्नी में आए, जब हमने आपने जब ये बुक स्टार्ट की थी, आपको महसूस हुआ होगा कि यू आर डिफरेंट पर्सन. एंड अब जो आपको फीलिंग आ रही है आफ्टर 24-20, बिकॉज we are on 23rd day today, and before that 2-3 days we had come together to understand the base. तो हमको नियरली 25 से 20, 25-27 दिन हो गए. एंड इमेजिन हमने ये जर्नी कवर कर ली है. अमेजिंगली, isn't it? एंड विद दिस ग्रैटिट्यूड जर्नी आपको ये भी समझ में आया होगा कि नाउ वी हैव टू बी ग्रेटफुल फॉर ऑल द स्मॉलेस्ट थिंग्स व्हाट आर अवेलेबल टू अस. So isn't air is do you think air is the smallest thing which is available to us? Or more? Who will tell me? It is the smallest or the biggest thing what we have in life? Anyone is having that feeling? छोटी है क्या बड़ी चीज है availability में? Are you all listening? Please on your cameras, everyone. I went from sweating. अपना अपना कैमरा प्लीज ऑन करिए, मुझे लोगों से बात करनी है. I want to see your smiling faces, happy faces. I went from sweating the small stuff in my little world and day-to-day life, and to opening my eyes and thinking about the bigger picture and wonder of the universe. So she said, मैं मेरी छोटी छोटी चीजों में रही, और धीरे धीरे जब मैं ग्रैटिट्यूड में आई, मुझे ये पता चला कि मेरे लाइफ में कितनी अच्छी अच्छी छोटी छोटी चीजें भी हैं. और एंड माई आई स्टार्टेड ओपनिंग एंड थिंकिंग अबाउट द बिगर पिक्चर, कि ये सब छोटी छोटी चीजें मिला के कितना बड़ा यूनिवर्स है जो हमारे लिए बिल्ड किया गया है. एवरीथिंग इज अवेलेबल. और हमको फील होता है कि हमारे पास नहीं है, नहीं है. As the great scientist Newton said, when I look at the solar system, I see the earth at the right distance from the sun to receive the proper amounts of heat and light. And this did not happen by chance. सोचो अगर सन बहुत ज्यादा नजदीक होता अर्थ के तो क्या होता, राइट? हम सब जल ही जाते ना. और अगर बहुत दूर होता तो बर्फ ही हो जाता, हम भी बर्फ हो जाते उसमें. बट यूनिवर्स ने, ब्रह्मांड ने कितना अच्छा उसको क्रिएट किया हुआ है, इतना अच्छा पिक्चर उन्होंने क्रिएट किया हुआ है. हर चीज एक प्रॉपर डिस्टेंस में, हर चीज एक प्रॉपर जगह में, कार्बन डाइऑक्साइड प्रॉपर अमाउंट में, ऑक्सीजन प्रॉपर अमाउंट में, अदर गैसेस प्रॉपर अमाउंट में. सोचो अगर ये सब चीजें हैं तो ये किसने बनाया है? एंड इफ ऑल दीज थिंग्स हमारे लिए फ्रीली अवेलेबल है, हमने आज तक उसके लिए थैंक यू बोला ही नहीं. हमने वो चीज को रियलाइज ही नहीं किया, हमने उसको फील ही नहीं किया कि हवा भी हमारे लिए कितनी फ्रेंडशिप करके हम हमारे सपने पूरे कर सकते हैं. आज हम वो सीखेंगे कि हम हवा से दोस्ती करके कैसे अपनी इच्छाओं को पूरी करेंगे. As the great scientist, she said कि when I look at the solar system, हर चीज अपने डिस्टेंस, हर एक एलिमेंट, सन इज एट इट्स प्लेस, प्लैनेट्स अपना जो सोलर सिस्टम है, हर प्लैनेट. और सोचो एक अर्थ ही है ना जिसके ऊपर हम रह पा रहे हैं, राइट? क्योंकि उसके ऊपर ही वैसा एटमॉस्फेयर है. सो दोज वर्ड्स मेड मी थिंक more and more about the bigger picture. And it's not an accident that that's the protective atmosphere surrounding us. और यही चीज के लिए हम कोविड में भाग रहे थे, राइट? कोविड में इसी चीज की जरूरत थी ना. सिलेंडर्स के ऊपर सिलेंडर्स के लिए लोग लाइन लगा रहे थे. एंड जब हमको फ्री में मिल रहा है, हम उसकी वैल्यू नहीं कर रहे, हम उसको प्योर रहने नहीं दे रहे, वी आर पॉल्यूटिंग इट. तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना कि हम उसको प्योर रखें. आज हम देखेंगे कि हम हवा को अपना साथी बना के, अपना टीचर बना के कैसे अपने सपने पूरे कर सकते हैं. As the greatest scientist, yeah, we finished this. Those words made me think more and more about the bigger picture. That it's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there's no air or oxygen. हम सबको पता है कि एटमॉस्फेयर के बियॉन्ड, अर्थ के ऊपर एटमॉस्फेयर है, उसकी वजह से हमको ऑक्सीजन और ये जो हवा है वो मिल रही है.
Otherwise, if you go beyond that, there is no oxygen beyond that. तो सोचो अगर हम उसके ऊपर रहते और वो लेयर अगर नहीं होता हमारे अर्थ के ऊपर, तो हम ये चीज जी ही नहीं पाते. We would have not been a living being. So it's not an accident that there's a protective atmosphere surrounding us that's beyond it, and there's no air or oxygen. It's not an accident that the trees give off oxygen. क्या आपको ये लगता है कि एक्सीडेंट से देते हैं क्या वो? यूनिवर्स ने बनाया है उसको वैसे कि वो हमको ऑक्सीजन दे, एटमॉस्फेयर में हवा जो है वो उसको कार्बन डाइऑक्साइड दे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड ले. उनको भी अवेलेबिलिटी की जरूरत होती है ना कार्बन डाइऑक्साइड की, तो ही वो ब्रीथ कर पाते हैं, एंड दे गिव आउट ऑक्सीजन. तो कितना अच्छा एक 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 चीज से दूसरा चीज रिलेट हुआ है. अगर आप ध्यान से देखोगे, हर एक चीज दूसरे चीज के साथ रिलेटेड है. इट इज इकोसिस्टम में डिपेंडेंट है, और हमारी लाइफ को वो सस्टेन कर रहा है, राइट? सो दोज वर्ड्स मेड मी थिंक more about the bigger picture, and it's not an accident that there is a protective atmosphere surrounding us, and that beyond it there's no oxygen, no air or oxygen. It's not accident that the trees give oxygen so that our atmosphere is continually replenished. सोचो अगर ट्रीज नहीं हो तो हमारे नेचर में क्या हो जाएगा. एंड दैट इज व्हाई पीपल आर सेइंग नो प्लांट ट्रीज, बिकॉज नाउ बिकॉज ऑफ द कटिंग डाउन ऑफ द ट्रीज there's lots of pollution coming in the air. And it's not an accident that our solar system is perfectly placed. देखो हर जो planet है perfectly placed है. Can we live on Mars? We cannot live, right? It does not have all the facilities what we have on Earth. And that if it were anywhere else in the galaxy, we would most likely to be devastated by the cosmic radiation. और अगर वो बाकी के planets भी Earth के बहुत नजदीक होते, so what would have happened? Because of the radiation, we would have been devastated. हम रह ही नहीं पाते. There are thousands of parameters and ratios that support life on Earth. हर चीज ब्रह्मांड में इस तरीके से पिरोई गई है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद ऐसे पजल बनी हुई है कि कभी आप अकेले बैठो और सोचो कि क्या परफेक्टली अलाइंड है यार ये सब चीज, और वो भी मेरे बेटरमेंट के लिए. तो आपको ध्यान में आएगा कि यूनिवर्स ने कितने अलग तरीके से ये चीज को बनाया है, और जिसकी हम वैल्यू ही नहीं कर पा रहे हैं. इट इज डिफिकल्ट टू बिलीव एनी ऑफ दीज थिंग्स कुड हैव हैपेंड बाय एक्सीडेंट. अचानक से नहीं हुई है, राइट? इट इज नॉट कि एक्सीडेंटली ये चीजें बनी गई है. इट वुड सीम दैट दे आर परफेक्टली डिजाइन, यूनिवर्स ने परफेक्टली डिजाइन किया है. और जब आप सोचो अगर हमारे लिए, राइट, ये सब चीज परफेक्टली डिजाइंड है, तो क्या उन्होंने हमारे सपने हमारे लिए परफेक्टली डिजाइन नहीं किए होंगे? या जो चीजें हमको चाहिए वो परफेक्टली नहीं डिजाइन की होगी? ही हैज डिजाइंड फॉर अस, बट हम ही उस तरफ नहीं पहुंच पा रहे. हमारा ही ग्रेटिट्यूड वहां तक हमको ले नहीं जा पा रहे, क्योंकि हमारे कंप्लेन्स ज्यादा है और ग्रेटिट्यूड अभी तक हमने पूरे नहीं किए हैं, तो हम वहां तक पहुंच नहीं पा रहे. तो ब्रह्मांड ने तो हमारे लिए डिजाइन करके रखे हुए हमारे सपने. So it is difficult to believe any of these things could have happened by accident. So it would seem that they are perfectly designed, perfectly placed, हर चीज अपनी जगह पे, perfectly balanced for us. देखो पहाड़ियां जहां पे होनी चाहिए वहां पे है, जहां पे स्नो होना चाहिए वहां पे है. वहां पे आप देखोगे जहां पे बहुत ज्यादा स्नो है वहां पे आबादी नहीं है, राइट? तो जो चीजें जैसे प्लेस्ड है वो किसने प्लेस की है? कायनात ने, यूनिवर्स ने, राइट? एंड हम उसके लिए थैंकफुल नहीं है. वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग. हमने वो पिक्चर, वो पेंटिंग यूनिवर्स की देखी नहीं है. हमने ध्यान ही नहीं किया है कि इतनी अच्छी पेंटिंग, इतनी अच्छी हमारे लिए यूनिवर्स ने क्रिएट की हुई है. हमारा ध्यान ही उस तरफ नहीं जाता है. So when the realization hits you that all of these things might not be an accident, and that the balance of every microscopic element surrounding the earth, छोटी से छोटी चीजें, छोटे से छोटा कीड़ा, छोटे से छोटा जानवर,
जो इस जमीन पे है, इकोसिस्टम में है, वो सब एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, यूनिवर्स ने बनाया उसको वैसे है, राइट? So microscopic elements surrounding the earth and on earth is in perfect harmony to support us. Bacteria, ये देखोगे आप कितने सारे ऑर्गेनिज्म मिलके एटमॉस्फेयर में होते हैं, राइट? There are not only gases, there are many organisms also, bacterias also. नहीं तो हमको बैक्टीरिया वायरस कैसे आते हैं? थ्रू एयर ही आते हैं ना। और फिर तब हम उसके लिए ग्रैटिट्यूड करना चालू करते हैं। बट जब हम अच्छे होते हैं, हम जब वो एयर एयर सॉरी जब हम एयर ब्रीथ कर रहे हैं, तब हमको उसका वैल्यू ही नहीं रहता है कि ये हवा हमको किस तरीके से इतना अच्छा बना रही है। आप देखो, एक बच्चा, छोटा बच्चा जब पैदा होता है और सोया हुआ रहता है ना, 2 महीने का, 3 महीने का, आपने कभी उसकी ब्रीदिंग देखी है क्या? आपको पूरा दिखता है ऐसा कि उसका पेट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, पेट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, राइट? That is the right type of breathing. He is taking it, the capacity of the air is so cute that time, और हम बड़े होते होते हमारी लंग्स को खराब कर लेते हैं। So when the realization hits that all of these things might not be an accident, and the balance of every microscopic element surrounding Earth and on the Earth is in perfect harmony to support us, you will feel an overwhelming sense of gratitude for life, and because of all of it has been done to sustain you. The magical air that you breathe is not an accident or a fluke of nature. When you think about the enormousness what had to take place in the universe for us to have air, and you then take a breath, breathing air into your body becomes breathtaking in every sense of the word. Yash is saying that when you think about the enormousness of what had to take place in the universe for us to have air, आप अगर ध्यान करोगे कि एक एयर बनने के लिए यूनिवर्स ने क्या किया होगा, कितनी चीजों को मिला के, कितने गैसेस को मिला के वो एयर बनाई होगी हमारे लिए, कि जिसके जिसकी हमको जरूरत है और जिससे हम जी पाते हैं। तो उसकी, यानी क्या बोलते हैं, उसके एकदम अबंडेंस या उसका सोच यूनिवर्स का कैसा रहा होगा जब ये बनाया होगा, कि वो चीज को हर चीज में परफेक्टली अलाइन करके बनाया कि हम वो सांस ले पाए। एंड देन यू टेक अ ब्रेथ, एंड ब्रीदिंग एयर इनटू योर बॉडी बिकम्स ब्रेथ टेकिंग इन एवरी सेंस ऑफ द वर्ड। फिर आपको समझ में आएगा कि इम्पोर्टेंस ऑफ माई ब्रेथ, हाउ इम्पोर्टेंट इट इज। वी टेक वन ब्रेथ आफ्टर अनदर एंड नेवर गिव अ थॉट to the fact that there is always air for us to breathe. And yet, oxygen is one of the most plentiful elements in our body. And none of us would last more than body as we breathe. And it feeds every cell in our body so that we can continue to live. सोचो, अगर ये हवा नहीं होती आज हमारे अंदर, हम जी पाते क्या? So we have never given this thought. Yet oxygen is one of the most plentiful elements in our body, and and as we breathe, it feeds every cell in our body. हमारे body के हर cell में वो जाती है air, and that is why you are able to live. मैंने लास्ट टाइम भी बोला था कि अगर आपका नाक बंद हो जाता है सर्दी से, कितनी अनकंफर्टेबिलिटी होती है, वी आर नॉट एबल टू ब्रीथ. The people who are suffering from asthma, who are having a breakdowns in asthma, ask them how difficult it is. और जिनको बार बार sneeze आती है, बार बार, they feel like it becomes very difficult for them, they cannot breathe. And we have to understand कि जो pure air है ना, वो बाहर nature में मिलती है. So we should make it a point, take it a responsibility कि उस air को भी हमको बचाना है और उसको भी देखभाल करनी है. We should not pollute the air. So the most precious gift of our life is air. And because without of it, none of us would have last more than a few minutes. So and imagine करो, जब आप meditation करते हो, आपको क्या करने के लिए बोलते हैं? जब मैं स्टार्ट करती हूँ प्रेयर भी, हम क्या बोलते हैं? टेक अ डीप ब्रेथ इन. तो हम क्या लेते हैं? यस मंजू मैम, क्या लेते हैं हम?
Deep breath. Yes, deep breath means what are we taking in? Fresh air. Fresh air, we are taking in oxygen deeply, right? So वो भी आपको मेडिटेशन में हेल्प करती है, एयर. सो देर आर सो मेनी थिंग्स, कि एयर हम सिर्फ एक ही मतलब से सोचते हैं कि हाँ, एयर हमको सिर्फ हवा देती है. ओके, और एयर इज फिलिंग लंग्स. एयर हमको बॉडी में ये करती है, बट इमेजिन एयर की वजह से आप मेडिटेशन भी कर पाते हो. So when I first began to use the gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. See, अभी ये words ध्यान से सुनो. When I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. मैंने आपको बोला था ना कि आज आप समझोगे कि हवा से आप अपने ड्रीम्स कैसे पूरे कर सकते हो. So she said that when I first began to use gratitude's magical power, I used it for a lot of personal things that I wanted. And it worked. But it was when I began to be grateful for the real gifts in life that I experienced the ultimate power of gratitude. And the more grateful I became for a sunset, a tree, the ocean, the dew on the grass. कभी हमने ड्यू ऑन द ग्रास को कभी थैंक यू बोला था क्या? लीव्स के ऊपर हम देखते हैं, बट हमने नेवर वी सेड थैंक यू, क्योंकि हमने उसकी वैल्यू ही नहीं समझ में आई थी नहीं कि वो किया। किस लिए है. राइट? अ ट्री, the ocean, the dew on the grass, my life, and the people in it. Every material thing I have ever dreamt of having poured down upon me. See, she's saying, उसने जितना ग्रेटिट्यूड किया हर एक चीज के लिए, सनसेट के लिए, धरती माता के लिए, पानी के लिए, हवा के लिए, अग्नि के लिए. पेट में हमारे अग्नि है, सिर्फ गैस में नहीं है जिसके ऊपर चूल्हे पे हम खाना बनाते हैं. हमारे पेट में भी अग्नि जो हमारा खाना पचाती है. तो सोचो, अगर हम उसके लिए थैंक यू नहीं बोलेंगे तो कैसे चलेगा? हवा है हमारे पेट में, हमारे बॉडी में कितनी हवा है आपको पता है? आ होल बॉडी इज फिल्ड ऑफ ऑक्सीजन. तो हमने कभी उसके लिए थैंक यू नहीं बोला. एंड शी सेइंग कि जब मैंने ये छोटी छोटी चीजों के लिए थैंक यू बोलना शुरू किया, मेरी लाइफ में मैजिक्स होने शुरू हो गए. एंड एवरी मटीरियल थिंग आई ड्रेम्ट ऑफ हैविंग poured down upon me. मेरे को इतनी सारी चीजें मिल गई, मेरे को इतनी सारी चीजें मिल गई. एंड आई नाउ अंडरस्टैंड द रीजन व्हाई इट हैपेंड दैट वे. अब उनको समझ में आया कि ये क्यों हुआ. when we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature. देखो, लाइफ एंड नेचर, लाइफ ने हमको क्या क्या दिया है बोलो? कौन बोलेगा? चलो बोलो, लाइफ ने हमको क्या क्या दिया है? See, here she's saying that when we can feel truly grateful for the precious gifts of life and nature. अब नेचर का तो हमको समझ में आ गया. Life, what is the precious gift of life? What does that mean? Like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. We see here I'm reading, मैं क्यों few sentences read करती हूँ ताकि आप लोगों को वो words highlight हो और आपके ध्यान में वो आए. When we can feel truly grateful for the precious gifts of life. Gifts of life क्या है अपनी लाइफ में? सिर्फ ऑक्सीजन एयर ही है? किसी को नहीं पता? water, sunlight, moonlight, तो दैट land, तो वो नेचर हो गया, दैट तो वो नेचर हो गया. व्हाट आर द गिफ्ट्स ऑफ लाइफ? आई एम सेइंग गिफ्ट्स ऑफ लाइफ. our body, relations, health, Yes, all that. yes, our body, our health, our relations, all the people around us, our mindsets, our intelligence. Isn't that gift of life? हमारे अंदर जो क्रिएटिविटी है, हमारे अंदर जो इंटेलिजेंस, isn't that the very good acknowledge? Like the magical air that we breathe, we have reached one of the deepest possible levels of gratitude. And whoever has the depth of gratitude will receive absolute abundance. And see, and whoever has the depth, what does depth mean? हमने दो परसों भी सीखा कि जब तक आप डीप फीलिंग में नहीं जाओगे, जब तक आपको अंदर से वो ग्रेटिट्यूड फील नहीं होगा ना, यू विल नॉट रिसीव अबंडेंस. तो शी इज सेइंग, एंड whoever has the depth of gratitude
will receive absolute abundance. छोटी चीज, किसी ने आपको चाय पिला दी, किसी ने आपको कॉफी पिला दी, किसी ने आपका ये काम कर दिया, किसी ने आपको एक चॉकलेट भी दे दिया, किसी ने आपको रास्ते में एक गिलास पानी पिला दिया। मैं आज ऑब्जर्वेशन के लिए गई थी, तो वहां पे स्कूल में प्रिंसिपल ने जाते बराबर मुझे एक छोटी बोतल पानी की दी। पहले मैंने उनको बोला मैं मेरा पानी कैरी करती, बट उन्होंने बोला नहीं, ये हमारी तरफ से, आप पियो। तो इमेजिन, अगर आपके पास सामने से कोई पानी दे रहा है और आप उसको थैंक यू भी मन से नहीं कर रहे हो कि यार, हो सकता था कि मैं आज बॉटल भूल जाती पानी की, पर सामने से तो मुझे पानी मिल गया ना। पानी इंपॉर्टेंट चीज, कोई भी चीज सामने से आपको कोई भी ये दे रहा है, कोई आपको इमोशनल सपोर्ट भी दे रहा है, उसके लिए थैंक यू हो जाओ, राइट। किसी ने आपको एक रुमाल दे दिया, किसी ने आपको एक चॉकलेट दे दिया, एक आइसक्रीम खिला दी, कुछ भी, एक स्वीट दे दी, कोई कोई लड्डू भी खिला देता है, कोई गुलाब जामुन खिला देता है, यार उसके लिए भी थैंक यू बोलो। एंड यू विल सी द मिराकल्स इन योर लाइफ, भर भर के आपके पास आएगा हर चीज घर में। So today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy breathing it out. Take 5 full breaths in and out 5 different times today. And after you have taken each set of 5 breaths, say the magic words, "Thank you for the magical air that I breathe." Let's close our eyes. Let's close our eyes and we are going to sit straight and we are going to do the deep breathing today and just follow my instructions. आंखें बंद कर लो। Fully focus deep inside your heart. अपना जो ध्यान है ना, अपने हार्ट पे लेके जाओ। And take a deep breath in. And जब छोड़ो तो थैंक यू बोलो। Take one more deep breath and say thank you. Take one more deep breath. Focus on your heart and breathe out. Take one more deep breath. फील करो कि जो मैजिक हवा है, एयर है, आपके अंदर जा रही है एंड आपके लंग्स खुश हो गए आपकी उस हवा से, और वो फूल रहे हैं, और खुश होके वो उस हवा को आपके पूरे बॉडी में, आपके हर एक सेल में उसको पहुंचा पा रहे हैं। फील दैट air is really moving throughout your body. फिर से श्वास लो and say thank you for the magical air that I am breathing. अपने मन में बोलो, जोर से बोलो, thank you for the magical air that I am breathing. Thank you for that oxygen that is reaching every cell of my body. वो जो ऑक्सीजन मेरे बॉडी के अंदर जाके, मेरे हार्ट के अंदर जाके, मेरे हर एक सेल तक पहुंच रहा है, उसके लिए दिल से शुक्रिया। यही हवा की वजह से मैं आज जी पा रही हूँ। इस जादुई हवा के लिए दिल से धन्यवाद। Take one more deep breath. Hold it. And then release it. Take one more deep breath. नाक से श्वास लो, 2 सेकंड के लिए होल्ड करो,
and then release it. Take one more deep breath. Hold. And then relax. Rub your palms and keep it on your eyes, generating energy in your hands, clockwise and anti-clockwise. And just open your eyes. Now, जब भी आपको कोई सपना आपका पूरा करना है, आप बाहर जाओगे बालकनी में, आप 2-3 बार फ्रेश एयर अंदर ऐसे डीपली ब्रीथ करोगे, और जब आप होल्ड करोगे, टुडे व्हाट आई टॉट यू, जब आप होल्ड करोगे, राइट, आपने ऐसे श्वास ली अंदर, आंखें बंद, आपने मन में होल्ड करते समय, जब आपने सांस को होल्ड किया है, आपने आपका ड्रीम उसको बोलना है कि थैंक यू मैजिकल हवा, आपने मेरा ये ड्रीम पूरा कर दिया। होल्ड करके जब आप माइंड में वो चीज बोलोगे और फिर आप उसको थोड़ी देर के लिए होल्ड करके फिर रिलैक्स करोगे, दैट इज द मेथड ऑफ आस्किंग योर ड्रीम्स टू द मैजिकल एयर। जितनी बार आप बोल सकते हो, आप कभी गार्डन में गए, कभी आप वॉक करने गए, आप पेड़ के पास हो, तब भी ये ट्राई करके देखो एंड सी द डिफरेंस यू फील। सी, देखो, फीलिंग आपके अंदर आनी जरूरी है। दीज ऑल प्रैक्टिसेस आर टेकिंग यू टुवर्ड्स दैट फीलिंग। It is best if you can do this magical practice outside, so you can really feel and appreciate the magnificence of fresh air. But if that's not possible, then do it inside. अगर नहीं बाहर जा सकते हो तो एटलीस्ट घर में करो। घर में नहीं, खिड़की के पास करो। बालकनी नहीं है जिसके घर में, खिड़की के पास करो, एटलीस्ट हवा तो मिलेगी आपको। But if that's not possible, then do it inside. So you can close your eyes while taking the breaths, or you can do it with eyes open. Do it with eyes closed, आपको फीलिंग आएगी। अभी आपको फीलिंग आई थी जब हम कर रहे थे? You could feel that? Good. You can do it while you are walking, waiting in the line, shopping, or anywhere at any time you want. Because हवा तो सब किधर अवेलेबल है, और उससे तो आप कभी भी दोस्ती कर सकते हो, राइट? तो आप जहां पे भी हो, यू कैन डू इट दैट टाइम। यू कैन डू इट व्हेन यू आर वॉकिंग, व्हेन यू आर स्टैंडिंग इन द लाइन फॉर द शॉपिंग, इंस्टेड ऑफ क्रिबिंग, इंस्टेड ऑफ लुकिंग अदर पीपल, दूसरे का ड्रेस देख के जज कर रहे हो, कैसा ड्रेस पहना है, ये कैसी लग रही है, ये क्या कर रही है, पता नहीं कितना जाड़ा है रे वो, कितना पतली है वो, देखो कितना शॉर्ट ड्रेस पहना है। ये सब के ऊपर से फोकस हटा के अगर आप अपने अंदर ही रहते हो ना, तो आपकी चीजें मैनिफेस्ट होने से कोई नहीं रोक सकता। हमारा ध्यान किधर जाता है? बाजू में खड़ी हुई लड़की, अरे कितना छोटा ड्रेस पहना है, अरे वन पीस पहन के कितने बड़े पाव है और ऐसा शॉर्ट ड्रेस पहन के खड़ी है। और फिर कोई आदमी खड़ा है, अरे कितना मोटा आदमी है, कितना हमारा फोकस सिर्फ यही चीजों पे जाता रहता है कि हम कब दूसरे को कुछ कमेंट पास करें। So instead of that, that is why she's saying कि whenever you are walking, you're waiting in the line for shopping, anywhere at any time you want, you can do this practice. The important thing is to deliberately feel the feeling of air going in and out of your body. Breathe the way you naturally breathe, because this magical practice is not about your breathing, but about your gratitude for the air you breathe. आपको थैंक यू फील करना है, थैंक यू। दैट इज व्हाई इन अ प्रेयर वी डू थैंक यू फॉर द एयर दैट वी आर टेकिंग इन। सो इफ टेकिंग अ बिगर ब्रेथ हेल्प्स यू टू फील मोर ग्रैटिट्यूड, यानी डीप ब्रेथ जैसे हम बोलते हैं ना, टेक अ डीप ब्रेथ, देन डू दैट। इफ इट हेल्प्स टू मेक अ साउंड, जैसे ऐसा हम करते हैं ना, बहुत सारे लोग करते हैं, अंदर डीप ब्रेथ बोला तो इतना बड़ा आवाज निकालते हैं। सो इफ यू फील दैट, you feel connected, you can do that also. So if it helps to make a sound or mentally say the magic words,
थैंक यू एज यू ब्रीथ द एयर आउट, देन डू इट। आप ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी के ऊपर है, जिससे आपको कनेक्टिविटी हो रही है। बट दिस प्रैक्टिस को लाइटली मत लेना। मैजिकल फुटस्टेप, मैजिकल टू डू लिस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, very important. So if you want, you can also do a variation of this practice in the future by imagining you are breathing in gratitude and filling yourself up with it with every breath you take, right? थैंक यू, थैंक यू। लिया आपने अंदर, थैंक यू, और छोड़ा आपने, थैंक यू। तो दैट वे यू कैन डू इट, शी इज सेइंग, ताकि आपको डिफरेंस फील हो उसका। In ancient teachings, it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power. अब यहाँ पे ancient teachings में किसकी बात हो रही है? जैसे बुद्धा थे, जो लोग ऋषि मुनि होते हैं, वो क्यों बाहर जाके पहाड़ों में बैठ के मेडिटेशन करते हैं? What would be the reason? आज तो समझ में आ गया होगा, कोई तो बोलो। यस, कोई तो बोलो। फ्रेश एयर मिलती वहाँ है। की, यस रमेश जी, फ्रेश एयर, राइट। यस धारा जी, बोलिए। हाँ वहाँ की प्योर एयर की वजह से, मैं वही यस, आंसर वहां देने के वाली थी। प्योर एयर की वजह से, राइट। तो वहां पे जाके जब आप ब्रीदिंग करोगे, मेडिटेशन करोगे, आपका फोकस होगा ना। देखो, हम जब मेडिटेशन करते हैं तो बेसिकली हम क्या करते रहते हैं? फोकस। फोकस, फोकस किसके ऊपर? हमारे ब्रीदिंग के ऊपर। हम ब्रेथ के ऊपर फोकस करके हम अंदर जाते हैं, राइट। तो इमेजिन, हवा जो है कितनी इंपॉर्टेंट थिंग है। So she is saying that in ancient teachings it is said that when a person reaches the point of being deeply grateful for the air that they breathe, their gratitude will have reached a new level of power, and they will have become true alchemists who can effortlessly turn every part of their life into the gold. Alchemist वो होते हैं जो कोई भी चीज को टच करे, किंग मिडास बन जाए। किंग मिडास की स्टोरी पता थी आपको? किसको Yes. किसको पता है? हमने स्कूल में सीखा था किंग मिडास की स्टोरी। किसको किसको पता है? अरे किसको नहीं पता है? अरे वो तो स्टोरी मैं बचपन से नहीं बोली हूँ। अरे Yes, किंग I मिडास की remember. स्टोरी हमको स्कूल में आती थी ना, दैट एक Yes, किंग yes, था। yes, Maria ma'am. यस, The Yes, king yes. who touched everything and it turned into gold. yes, yes, and one day his daughter also turned gold। Turned into gold. Yes, he did not realize that। तो फिर वही बोल रही हूँ ना कि you will become true alchemist who can effortlessly turn every part of their life into gold। मैं तो किंग मिडास की स्टोरी मुझे इतनी पसंद थी बचपन से कि मैं कभी भूलती नहीं हूँ वो। कि ही टच, ही आस्क्ड आई वांट अ बोन, कि मैं जिसको भी टच करूं वो सब गोल्ड हो जाए। तो वो बाहर गार्डन में गया, तो उसके गार्डन में उसने फ्लास्क को टच किया तो वो गोल्डन हो गए, तो उसकी ब्यूटी चली गई। ऐसे करते करते वो हर चीज को टच करते गया तो वो गोल्ड में कन्वर्ट हो गया। तो उस एक दिन उसकी बेटी को भी टच कर दिया तो वो भी गोल्ड होगी, तो अब उसके साथ बात करने वाला कोई नहीं था। So, but here that I gave that example to understand कि just कि here when you will remain into gratitude, you will see that you will become a true alchemist. That whichever area you turn to, it can you can turn into the gold. And ये शक्तियों पे आपको विश्वास नहीं हो रहा है क्योंकि आपकी प्रैक्टिसेस में किधर तो भी कमी रह रही है। यस, ये चीजें हैं, ये बिलीफ है। मैं 101% की गारंटी देती हूँ, मैं 1001% की गारंटी देती हूँ, क्योंकि हर चीज होती है लाइफ में। और मैं जो सुबह में निकलती हूँ ना, अगर मुझे कोई काम पे भी ऐसे जाती हूँ QCI के ऑब्जर्वेशंस के लिए, मैं मैं मैग्निफिसेंट आउटकम लगा के निकलती हूँ, और मेरा ऐसा जो मैं बोलती हूँ वैसे ही चीजें होती है, वैसे ही चीजें होती है।
और जहां पे मुझे ऐसे लगता है ना कि हाँ अरे सामने से कोऑपरेशन नहीं आ रहा, मैं इमीडिएटली थैंक यू थैंक यू थैंक यू बोलना शुरू करती हूँ और वो इमीडिएटली चेंज हो जाती है चीज। एक्सपेरिमेंट, दैट इज व्हाट आई से, डू इट ऑन योर ओन, एक्सपेरिमेंट इट। अपने आप को बिलीफ सिस्टम में कैसे लाओगे जब तक आप एक्सपेरिमेंट नहीं करोगे? हर चीज के अंदर जब आप एक्सपेरिमेंट खुद से करने शुरू हो जाओगे ना, आपको अभी छोटे छोटे मैजिक्स तो दिखते होंगे ना। वेरी गुड। धारा जी तो है पहले से, तो मुझे पता है। द मैजिकल एयर दैट यू ब्रीथ, काउंट योर ब्लेसिंग्स, मेक अ लिस्ट ऑफ 10 ब्लेसिंग्स, काउंट। हम तो ये रोज ही करते हैं राइट, मम्मी पापा के लिए ग्रेटिट्यूड एंड योर काउंट योर ब्लेसिंग्स, डोंट फॉरगेट दैट, वेरी इंपॉर्टेंट। एटलीस्ट 10 तो मिनिमम लिखो। And 5 times today, stop and think about the glorious air that you breathe. Take 5 deliberate breaths and feel the feeling of the air moving inside your body and feel the joy of breathing it out. एकदम आराम से, एकदम आराम से। कल जब आप सुबह में उठोगे, बाहर निकलोगे, रिक्शा में हो, बाइक पे हो, जोर से ऐसे सांस लो, थैंक यू बोलो, थैंक यू जितना मन से बोलोगे ना, आफ्टर यू हैव टेकन द 5 ब्रेथ्स, से द मैजिक वर्ड्स, थैंक यू फॉर द मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। देखो चैप्टर का नाम भी वो दिया है कि मैजिकल एयर दैट आई ब्रीथ। बी एज ग्रेटफुल एज यू कैन फॉर द प्रेशियस लाइफ गिविंग एयर दैट यू ब्रीथ। सोचो अगर ये एयर अंदर नहीं जाती, और हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, कौन सा इंपॉर्टेंट ऑर्गन है? लंग्स। lungs and heart. हाँ, लंग्स एंड हार्ट। हमारा हार्ट अंदर लेता है राइट, हमारी लंग्स जो है वो हवा भरती है। एंड इमेजिन इफ दे डोंट वर्क प्रॉपरली, तो हमको एयर के साथ में इनका भी शुक्रिया करना चाहिए क्या नहीं? करना Yes. चाहिए। यस, वी हैव टू बी थैंकफुल फॉर दीज ऑल्सो। आपके पास एयर है और आप ब्रीथ कर रहे हो, बट आपकी लंग्स अच्छी नहीं है, आपकी लंग्स खराब हो गई, आपने वर्क उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया है, तो क्या आप ब्रीथ कर पाओगे क्या अंदर? आपके सेल्स तक ऑक्सीजन पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। तो देखो ये जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है ना, जब आप आपकी बॉडी की भी रचना देखते हो ना, तो कभी कभी मैं अकेली बैठती हूँ ना, तो मुझे ये विचार आता है यार ऊपर वाले ने कैसे सोच के कि ये सोचा रहेगा कि मैं यूट्रस डालू वुमेन के अंदर और वुमेन ही बच्चा कैरी कर पाएगी। तो मेरे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं कि क्या दिमाग में आया रहेगा ना ऊपर वाले की कि कैसा ये हो सकता है, कितना इंटेलिजेंस है यूनिवर्स में, कितना पावर, कितना ये कि उसी के पास उतनी सहन शक्ति है कि वो डिलीवर भी कर पाएगी वो एक जिंदगी। और आप सोचो एक वुमेन के अंदर कितना पावर है, वी गिव बर्थ टू अ न्यू लाइफ। तो क्या हम खुद क्रिएटर नहीं है क्या? तो जो हमको चाहिए वो हमारी लाइफ में हम नहीं ला सकते हैं क्या? हम्म। ला सकते हैं राइट, वी कैन ब्रिंग। बट हमको हमारा ही ट्रस्ट छोड़ देते हैं हम। जब आपको हम अपने भगवान, जो भी आप जिसको भी मानते हो, अल्लाह, खुदा, जीसस, जिसको भी, राम, कृष्णा, गणपति, जिसको भी आप मानते हो, आप अगर उनके ऊपर 1% भी भरोसा रख के देखोगे ना, 100% तो छोड़ दो, मैं क्या बोलती हूँ, 1% अगर पूरा बिलीव कि मुझे पता है कि देने वाला तो तू ही है, देने वाला तो तू ही है और मुझे पता तू देगा ही देगा, तो आपने उसके ऊपर क्या लगा दिया? वो बोलेगा अरे बाप रे, इसने तो अभी जिद करके बैठ गई कि मुझे तो तू ही देगा, तो देना तो अब मुझे ही है। तो वो आज नहीं तो कल देगा। जैसे मैंने बोला था कि अगर बच्चा कोई जिद करता है तो मम्मी हर बार हर चीज नहीं देती है, कभी कभी इच्छा पूरी भी करती है और कभी मना भी कर देती है। तो उसी तरह से भगवान को पता रहता है कि हमारे को क्या चाहिए, ऊपर वाले को सब पता रहता है कि हमको चाहिए क्या, और वही चीज हमको देगा। कि हमारे अंदर रिसीव करने की कितनी कैपेसिटी है, तो पहले अपनी रिसीव करने की कैपेसिटी बढ़ानी है बाय गिविंग ग्रैटिट्यूड्स। और आप जितना ग्रैटिट्यूड देते जाओगे आप देखोगे आपकी रिसीविंग की कैपेसिटी बढ़ रही है। फिर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आपको मिलना शुरू हो जाएगा। एंड जस्ट बिफोर यू गो टू स्लीप टू नाइट, मैजिक रॉक को भूलना नहीं है। होल्ड योर मैजिक रॉक इन वन हैंड एंड से द मैजिक वर्ड्स थैंक यू। और मुझे सबसे अच्छी प्रैक्टिस मैजिक रॉक की लगती है।
थक के चूर होके जब आप पलंग पे पड़ते हो ना, आप मैजिक रॉक को पकड़ो हाथ में एंड यू जस्ट प्रैक्टिस दैट, और उनसे बात करते करते सो जाओ। वो हाथ में लेके कब नींद लग जाती है पता भी नहीं चलता है। ओके। कल आप मैजिक वॉन्ड सीखोगे कि आप दूसरों के ऊपर कैसे मैजिक कर सकते हो, आपके लव्ड वंस के ऊपर, आपको जिसके लिए करना है आप उनके लिए कैसे कर सकते हो। चलो, एनी अदर क्वेश्चंस कमिंग? आई थिंक हातिम जी कुड नॉट ज्वाइन टुडे बिकॉज ही हैड टोल्ड मी, बट आना होता तो फिर वो पहले ही आ जाते थे। लेट मी सी बी एस सेंड सम मैसेज। एनी क्वेश्चंस कमिंग टू योर माइंड? Yeah, he couldn't attend, so sorry, he's a little busy. Okay, it's okay. So he can join in tomorrow. Yes, any questions coming to your mind कि एयर कैसे अपने सपने पूरे कर सकती है, आपको आज ध्यान में आया? First, मैम, मुझे है ना एक बात याद आई। जब लॉकडाउन था ना, तब काफी लोग को हार्ट का चैलेंज आ रहा था। तो मुझे पहले ऐसा लगा इन लोगों को ब्रीदिंग के चैलेंज में हार्ट का चैलेंज कैसे आ रहा है, बट नाउ आई गॉट आंसर टुडे इन दिस, कि वो चीज अंदर ही नहीं जाएगी, ब्रेथ की ब्रीदिंग ही अंदर नहीं जाएगा तो हार्ट को कैसे वो चीज मिलेगी। तो मुझे वो चीज क्लियर हुई। और आप अभी जो कोई किस की स्टोरी बता रहे थे कि आपने पढ़ी है बचपन में। किंग मिडास की। हाँ, हम्म। तो हम तो शाकालाका बूम बूम वाले और सोनपरी वाले हैं, तो हमको वो याद पहले आता है। मैजिक वॉन्ड और वो पेंसिल वाला पहले याद आता है मैजिक बुक का, कि लिखो और जल्दी से अपने पूरे करो। और कल मैजिक वॉन्ड का वैसे भी है सोनपरी का, तो मुझे पहले वो याद आ जाता है। हाँ, हम और बचपन मैम आज में गुड देखो न्यूज। हर मैजिक को बिलीव करते थे, हर छोटी छोटी हम्म। चीज को, कार्टून में जो दिखता था। और अभी हम बिलीव नहीं करते, और बचपन में हम सब बिलीव करते थे, राइट? हम्म। और जैसे जैसे बड़े होते गए हमारी बिलीव्स ही छोटी हो गई, लिमिटेड हो गई, राइट? 28 डेज के बाद हम शक्तिमान बन जाएंगे सब लोग। ऐसे वाले। हाँ। प्रैक्टिसेस वो मुझे करना बहुत याद जरूरी आता है है। सब चीजें। प्रैक्टिसेस हु हैव मिस्ड, प्लीज स्टार्ट यस योर प्रैक्टिसेस। जितना कर सकते हो प्रैक्टिसेस करो, बिकॉज ये प्रैक्टिसेस इज ओनली गोइंग टू टेक, छोटी छोटी चीज के। मैम, एक चीज मैंने देखी आज, मैंने ना मेरी मम्मी के लिए ग्रेटिट्यूड लिखा। मतलब मैं लिखती थी बट बहुत छूट जाता था। आज मैंने दिल से लिखा उनके लिए, और मैं सोच रही थी यार हमने कितना टेकन फॉर ग्रांटेड लेके रखा है माँ को। उन्होंने तो जो किया है, मतलब वो एक एक चीज हम बता नहीं सकते इतना। मतलब मुझे फील आ रही थी वो चीज की। और ये जो सारी सीरियल के भी नाम मैं अभी ले गई ना, वो सारी सीरियल को लेके भी मुझे मेरी बचपन के साथ, मेरी हर एक सीरियल में मेरा भाई बैठता था मेरे साथ वो देखने के लिए, तो वो प्यारे प्यारे मोमेंट्स याद आ रहे थे। और आजकल मुझे नींद इतनी अच्छी आती है, इतनी काम एंड वाओ, पीसफुल, वेरी गुड, इतना अच्छा लगता है। वेरी गुड। मतलब बहुत, मतलब जैसे पहले कैसा था कि दिमाग में सोते हुए भी अर्ध जागृत अवस्था में रहते थे। आप पूरी एकदम से डीप साउंड स्लीप में ही रहते हैं कि पता ही नहीं चलता कि एकदम से नींद में से उठे। और अब तो दुनिया भी अलग अलग होने लगी है। ऐसा लगता है बहुत कुछ मैजिकल मैजिकल होने लगा है, बहुत पीसफुल पीसफुल होने लगा है। ये वक्त तो जाए नहीं, ऐसा लगता है। जब भी ऐसे कोई शेयर करता है, प्लीज गिव योर मैजिक डस्ट, से ब्लेसिंग्स टू यू, गॉड ब्लेस यू, से वाओ। तो आपके मैजिक्स में वो पावर आती है। सो वेन एवर एनीवन इज शेयरिंग ना, यू शुड से ब्लेस यू, वाओ बोलो। जितना वाओ बोलोगे ना, यू विल सी दैट थिंग इज कमिंग टू यू ऑल्सो। वेरी गुड तो प्रशांत थैंक यू जी। सो मच मैम। अब वाओ तो धरा मैं जी, इस वाओ। दीवारों के लिए, इस छत के लिए बहुत ग्रेटिट्यूड लिखती हूँ। मैं हर एक दीवार को टच कर करके प्यार आपका देती हूँ। ड्रीम मैं हाउस बोलती है हूँ ना, यार। तो आपको वही करना God पड़ेगा। bless आप जितनी you. छत है, इवन आकाश छत अपने इसके लिए भी लिखिए, स्काई के लिए भी लिखिए, क्योंकि यस। वो भी एक छत है अपने सिर पे। तो उसके लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटिट्यूड लिखो। आपके घर की छत के लिए लिखो, जहां जहां आप होटल में रुके हो, कहाँ आप गए हो ट्रैवल पे और वहां पे आपको छत मिली है, मामा के घर में, मामी के घर में, बुआ,
चाचा के घर में गए होगे, वहां पे भी तो छत मिली थी ना थोड़े दिनों के लिए, राइट? वो मैंने सारे पहले के फुलफिल कर जमाने लिए, में तो वो तो लोग लिख छत पे लिए। जाके सोते थे, टेरेस पे। यस, यस, यस। वो मुझे तो थैंकफुल मेरा, फॉर मैं दैट। पहले लिखती हूँ मैम, हमेशा मेरा कोई भी घर होता है ना, मैं उस टेरेस के लिए और पार्किंग प्लेस के लिए, बहुत बड़ा पार्किंग प्लेस चाहिए, तो मैं उसके लिए तो पहले ही लिखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में है, झूला है, पार्किंग प्लेस है, चिड़िया आती है बहुत सारी, सुबह से लेके रात तक चिड़िया रहती है, तो उन चिड़िया के लिए लिखती हूँ। उनकी चहचहाहट आवाज सुबह से ही गूंजना शुरू हो जाती है वो। ग्रेट। और मेरे घर में लेमन का पेड़ है, तो वो इतने बड़े बड़े लेमन देने लगा है आजकल, और इतने सारे फ्लावर्स आए लेमन के। मैं सोचती हूँ, मैंने जब से मैजिक बुक स्टार्ट किया है तब से उसके अंदर और ज्यादा फ्लावर आने लगे हैं, और ज्यादा उसमें बटरफ्लाईज आने लगी है, और ज्यादा नई नई अलग अलग कलर्स की चिड़िया आने लगी है। तो ये कुदरत का मुझे एक साइन दिखता है कि सारी कुदरत मुझे सुन रही है, मुझे महसूस कर रही है मेरी आपने वाइब्रेशंस साइन का को। बोला ना, टुडे आई वाज जस्ट थिंकिंग दैट आई शुड सी दोस 3 नंबर्स। एंड मैं जब ट्रैवल कर रही थी ना, जाते समय मुझे नहीं दिखा। जाते समय मुझे नहीं दिखा, बट आते समय मुझे 555 2 बार 3 बार दिखा, 444 दिखा। तो फिर मैंने बोला ये ये सेम हियर। ऐसा। सो व्हेन यू 12 12 इमेजिन ना, ट्रिपल टू। एंड जो माइंड में आप कोई यस। थॉट डालते हो ना, वो इमीडिएटली आपके अगर माइंड में आपने अगर वो इच्छा डाल दी ना, फिर वो पूरी होनी शुरू होती है। तो अगर आपका ट्रैवल का भी सपना है, तो आपने पहले कहाँ का ट्रैवल किया, इवन नजदीक के प्लेसेस में, आपके स्कूल्स की पिकनिक्स में गए होगे, या आपने कोई खुद से कोई प्लेसेस को ट्रैवल किया होगा, उसके लिए थैंक यू बोलना शुरू कर दो। जितने अपने पहले ट्रैवल डेस्टिनेशंस किए हैं ना, उसके सबके लिए ग्रैटिट्यूड, सबके लिए ग्रैटिट्यूड। बिकॉज यू कुड गो ना, तो उसके लिए हमने ग्रैटिट्यूड पे नहीं किया है, तो उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड हो जाए, तो आपका जो भी प्रेजेंट सपना है ना, जो भी आपका फ्यूचर वाला सपना है, वो कंप्लीट होगा। अगर आपको कोई चीज चाहिए, कार चाहिए, लैपटॉप चाहिए, तो पहले की चीजों के लिए हेल्थ चाहिए, तो आपकी हेल्थ पहले अच्छी थी ना, उस हर एक बॉडी पार्ट के लिए, हर एक यानी श्वास से लेके, सेल से लेके, आर्टरी से लेके, वेन से लेके, कैपिलरीज, एवरीथिंग व्हाट इज देयर इन योर बॉडी। नहीं समझ में आता है ना, तो गूगल पे जाओ, देयर आर मेनी थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी विच वी रियली डोंट नो इन साइंटिफिक टर्म्स ऑल्सो। उसको ढूंढो और उसको पकड़ के उसको थैंक यू बोलो, तो आप देखोगे आपकी हेल्थ अच्छी शुरू होनी हो जाएगी। आप जितना ग्रैटिट्यूड दोगे ना, आपके नीज में पेन है, आपके बैक में पेन है, आप बैक के ग्रैटिट्यूड ज्यादा करो। कि आप पहले पास्ट वाले कि पास्ट में तो अच्छा था ना, बैक आपका सपोर्ट कर रहा था, आपके नीज सपोर्ट कर रहे थे, आपके लेग सपोर्ट कर रहे थे, तो बी थैंकफुल फॉर दैट। आपका फॉर्मूला ही वही है कि आपको पहले पास्ट के जितने आपको जो आगे के लिए चाहिए ना, आपको पास्ट के लिए पहले ग्रैटिट्यूड कंप्लीट करने हैं। क्योंकि मुझे तो अभी भी लगता है मेरे सब विशेष फुलफिल होते हैं, बट अभी भी मुझे ऐसे लगता है कि मेरे कुछ ग्रेटिट्यूड छूट गए। मेरे को अभी भी मन में आता है, मैंने ऐसा कौन सा एरिया है जो मैंने अभी तक वर्क नहीं किया मैं जो और ऐसा नहीं आता है। मैं जब अकेली रहती हूँ ना, चलती रहती हूँ, या फिर मैं रिक्शा में अकेली बैठी हूँ, तो मेरे माइंड में, आज मैं ऑब्जर्वेशन में थी, तो एक एक क्लास में 5th स्टैंडर्ड था, एक मराठी का पोयम था, और उस पे से यानी मेरे माइंड में तभी इतने सारे क्वेश्चंस आए। वो मराठी में ऐसा था कि प्रश्न विचारा, बोलो तो क्वेश्चन पूछो, बच्चों के लिए ऐसा था, पोयम थी कि कुछ भी हो जाए आप प्रश्न पूछो, भले आप लाख गलतियां करो उसमें, तो ये पूछो कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों, मराठी में ऐसा था कि कुत्ते की पूंछ टेढ़ी क्यों रहती है, पेंगुइन की मान ऐसे क्यों रहती है। तो मुझे इतना हंसने को आ रहा था, और फिर मुझे सच में ऐसा हो रहा था, यार हमारे टाइम पे तो ऐसे हमने कभी नहीं सोचा था। मुझे तो सिर्फ लैंडमार्क में मैंने ये पूछा था कि दिल को दिल क्यों बोलते, मेरे को बार बार ये क्वेश्चन आता है कि ये वर्ड किसने निकाला रहेगा, यानी। एंड देन द अदर डे मैं मेरी बेटी को भी ये बात कर रही थी, तो मैं बोल रही थी, यार मुझे कभी ऐसा लगता है कि जिसने स्टार्ट किया रहेगा लैंग्वेज बनाने का, इतनी सारी लैंग्वेज है, तो उनके दिमाग में क्या आया रहेगा, एंड हाउ कम वी नो दैट देर आर सो मेनी डिफरेंट लैंग्वेजेस। यानी हमको कितनी चीजें रेडीमेड मिली है यार, कि लैंग्वेजेस भी हमको गूगल पे भी अगर हमको कोई लैंग्वेज सीखनी है, हम डालेंगे तो वो भी सीख सकते हैं। बट इमेजिन जिन्होंने इन्वेंट किया लैंग्वेज, उनका दिमाग किधर चला होगा, और हमने उनको भी थैंक यू नहीं किया है कि इतनी सारी लैंग्वेजेस। इन्हें हमने तो सोचा नहीं था इंडिया में, अगर हम देखेंगे तो एक महाराष्ट्र स्टेट या एक कर्नाटका का स्टेट में इतनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती है।
हम बोलते बेसिक लोकल लैंग्वेज महाराष्ट्र की, चलो मराठी है, बट देर आर सो मच, यू नो, इफ यू गो इन द लोकल एरियाज दे स्पीक सो मच डिफरेंट। बिकॉज जब मैं ये ऐसे स्कूल्स में ऑब्जर्वेशंस के लिए जाती हूँ ना, तो टीचर कोई एक्टिविटी करती होती है, तो उसमें वो उनको लैंग्वेजेस करा रही थी उस दिन। तो वो कौन सी बोले, लमानी लैंग्वेज है। तो मैं सोच रही थी, यार हमको पता है लमानी लोग क्या होते हैं, बट उनकी लैंग्वेज हमने आज तक नहीं सुनी। तो जब मैंने वो बच्चों को बोलते एक दूसरे के साथ सुना, तभी मुझे समझ में आया, यार कितनी मीठी बोली है। और ये चीजें जिन्होंने इन्वेंट की, हमने वहां तक गए ही नहीं है थैंक यू करने के लिए। सोचो आज इंग्लिश नहीं आती, सोचो आज हिंदी नहीं आती, हमारे टीचर्स नहीं होते, हमारे टीचर्स ने सीखा नहीं होता, तो हम कहाँ होते। तो अपने मेंटर्स, अपने टीचर्स, इनको तो भर भर के ग्रेटिट्यूड देना है। हर एक टीचर्स को याद करो रोज। कुछ नहीं नहीं लिख सकते ना, मैं क्या बोलती हूँ, दिल से मन से देखो। आपकी जो मन की फीलिंग होती है ना, अगर वो ऊपर तक टच हो जाए ना, तो फिर आप इमीडिएटली आपके सपने पूरे होने शुरू हो जाते हैं। बट फील करके ग्रैटिट्यूड करो अपने मेंटर्स के लिए, अपने टीचर्स के लिए, यू नो, जिन्होंने आपको कोई भी लाइफ में टच किया। हमने मैजिकल डिफरेंस, द पीपल हु मेड मैजिकल डिफरेंस इन योर लाइफ चैप्टर किया था, राइट। उस चैप्टर को बार बार पढ़ो, आपको समझ में आएगा कि कितने ऐसे अभी स्टिल ऐसे लोग हैं जिनको हमने थैंक यू नहीं बोला। यानी हर ऐसे मोड़ पे उन्होंने हमको कभी कुछ रास्ते में हेल्प किया रहेगा। आप गिर गए होगे, गाड़ी पे से गिर गए होगे, आप राइट। स्लिप हो गए, राइट। कभी स्लिप भी हो गए होगे, और किसी ने आपको पकड़ के उठाया होगा, राइट। ऐसा भी होता है ना कि रास्ते में आप स्लिप हो गए और किसी ने उठाया। मुझे याद आया, मुझे एक दो बार ऐसा हुआ था कि मैं गिरी थी और मुझे किसी ने उठाया था। तो मुझे ऐसे, जब मैं अकेली रहती हूँ तो मुझे ये सब चीजें बहुत याद आती है। आप याद करो, देखो आपके पास बहुत है भंडार अभी तो, बहुत सारी चीजों को ग्रेटिट्यूड करना, बहुत सारी। यानी अभी तो मुझे ऐसे लगता है वी हैव नॉट रीच्ड विश्ड। 50% ऑल्सो। अभी तो बहुत सारी चीजों का ग्रेटिट्यूड करना। यानी सोचो, अब आप बचपन से पैदा हुए और जो भी आपकी आज एज है, whether you are in 35 40 45 50 55 60 whatever it is, आज आपके पास कितने बैकलॉग है, यू नो, ग्रेटिट्यूड करने के कितने बैकलॉग। वी रियली हैव टू बी ग्रेटफुल, बिकॉज हम याद ही नहीं करते छोटी छोटी चीजें, बहुत सारी चीजें हैं आपको याद करना है। यस धारा जी। मैम मैंने आज मैजिक देखा कि सुबह को मैंने मेरी मम्मी के लिए लिखा, और सडनली इतनी सारी फीमेल से मुझे इतना अच्छा अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। जो मैंने आपको पास्ट में बताया था, काफी बार ऐसी चैलेंजिंग सिचुएशन हो जाती थी फीमेल्स के साथ, मैं कुछ सोच में पड़ जाती थी ऐसा होता क्यों है मेरे साथ। बट जैसे मैंने मेरी मुझे तब धारा जी, जल्दी इट से इज नॉट लाइक दैट, इट इज बिकॉज योर माइंड वॉज नॉट एट रेस्ट, यू वर नॉट यस रिकॉग्नाइजिंग योर सेल्फ लव। जब आप अपने आप को यस सेल्फ लव करते हो ना, तो फिर आपका किसी के साथ में कुछ नहीं होता है, क्योंकि आपको पड़ी नहीं रहती है। तो कुछ भी बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, ऐसा हो जाता है फिर हम। बिकॉज मैं अपने आप को प्यार करती हूँ, फिर तू मेरे बारे में कुछ भी सोच, तू मेरे को ओके कुछ भी बोल, मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं अपने आप को बहुत प्यार करती हूँ, मैं जैसी हूँ। आई एक्सेप्ट माई सेल्फ, दैट इज वॉट मिरर टीचर्स अस ना, कि आई राइट एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम। मैं गुस्से वाली हूँ, इरिटेबल हूँ, यू नो, नाक चढ़ी हूँ, चिड़चिड़ी हूँ, वो मैं हूँ। पहले मैं तो एक्सेप्ट करूँ कि मैं वैसी हूँ, राइट। वर्किंग उसके ऊपर बाद में आता है। बट हाँ वेन यू एक्सेप्ट योर सेल्फ कि यस ये है मेरे अंदर, इट्स ओके, आई एम ह्यूमन बीइंग, कम ऑन, मिस्टेक्स तो हम ही करेंगे। दैट इज वाई यस आज की वो मराठी की वो पोयम है ना, मेरे दिमाग में ऐसे बैठ गई है। यू नो, अगर आप सुनोगे ना तो आपको खुद को हंसने को आएगा कि ऐसा क्यों, कि इसकी पूंछ टेढ़ी क्यों, रात में वो ये क्यों उसके ऊपर आके बैठता है, कि हमारे दिमाग में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो वो बच्चों को, जो जो भी ऑथर ने लिखी है वो पोएट ने पोएम, आई रियली हैट्स ऑफ। मुझे आज मन में, मैं मेरे वो अलग ख्यालों में थी कि यार ये जिसने भी लिखी है ना, एकदम राइट लिखी है, यू नो। एंड बिकॉज हम हमेशा, जब भी मैं सीबीएसई स्कूल में प्रिंसिपल थी ना, तो मैं यही टीचर्स को भी बोलती थी, अरे बच्चों को क्वेश्चन पूछने का मौका दो ना, सिर्फ सिखाना सिखाना क्या कर रहे हो। बच्चों को क्वेश्चन पूछेंगे तो ही तो उनकी क्लैरिटी आएगी। उनके मन में भले
टेढ़ा मेढ़ा भी सवाल आ रहा है ना तो पूछने दो ना। तो अभी भी मैं जो स्कूल्स में ऑब्जर्वेशन में जाती हूँ, मैंने हर टीचर को बोला हुआ है कि इवन इफ द चाइल्ड इज गिविंग रॉन्ग आंसर, से इट्स ओके, डोंट टेल हिम दैट यू आर रॉन्ग। बिकॉज जब हम बच्चे को बोल देते हैं ना यू आर रॉन्ग, ये हमारे पेरेंट्स ने भी किया है हमारे साथ में, वो बच्चा कॉन्फिडेंस लूज कर देता है। वो बच्चा बाद में हाथ खड़ा करके आंसर ही नहीं करेगा क्लास में, क्योंकि उसको लगेगा रॉन्ग, सब बच्चे हंस रहे हैं। क्योंकि आज भी एक बच्चे ने दूसरे बच्चे का, जब एक टीचर एक्सप्लेन कर रहा था सर 5वीं का, तो एक बच्चे ने बोला दोनों का कंपैरिजन हो रहा था, तो बोले ये दोनों सेम है क्या, तो उसमें वो बोला फावड़ा, फावड़ी बोला। वो लड़की ने वो लड़के को बोला कि नहीं नहीं ये तो फावड़ा है और ये ऐसा है। तो मैंने बोली ये वर्ड नहीं यूज करना, लेबलिंग यू शुड नॉट यूज दैट वर्ड। बिकॉज जब हम बच्चे को स्टॉप करते हैं ना, हमारे घर में भी हमारे जब बच्चे हैं ना, अगर हम उनको बोलते हैं इवन इफ द चाइल्ड इज अ स्मॉल चाइल्ड डूइंग रॉन्ग, डोंट टेल कि आप रॉन्ग हो। अगर आपके पास टीनेज बच्चे हैं ना, तो उनको कभी ऐसा एहसास मत कराओ रॉन्ग है। इफ यू नो दैट द चाइल्ड हैज मेड अ मिस्टेक ना, उनको ऐसा बोलो यू कैन थिंक अबाउट वेदर यू हैव मेड अ राइट चॉइस और योर डिसीजन वाज राइट। जब आप उनको इस तरीके से बात करोगे ना, तो आप वो खुद ही ऑटोमेटिकली अपने थिंकिंग पावर में जाते हैं कि यस, फिर वो खुद ही बोलेंगे, अपने आप को रिफ्लेक्ट करेंगे कि यार मैंने सही किया क्या नहीं किया। बट अगर आपने बोल दिया कि तू ऐसी छे, तू ऐसा करता है, तू ऐसे, आप देखोगे वो बच्चे आपके साथ कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे फिर। तो स्कूल में भी वही होता है कि अगर आपने या बचपन में भी पेरेंट्स ने बोल दिया ना कि तू यू आर नॉट गुड, तू तुझे पढ़ाई करने को आती नहीं है, या यू आर नॉट एट ऑल गुड इन दिस, यू आर नॉट एट ऑल गुड इन दिस, आपको बोल दिया कोई भी चीज के लिए, इवन स्पेशली ड्यूरिंग द टीन एज, बिकॉज दैट टाइम वो इमेज फॉर्म होती रहती है बच्चों की खुद की, एक उनकी एक दे आर मूविंग इनटू अडल्टहुड के प्री फेज में। तो उनका ऐसा माइंडसेट हो जाता है ना कि उनको इंसल्ट, उनको किसी के सामने कुछ बोला वो अच्छा नहीं लगता है। तो द मोमेंट यू ट्रीट देम लाइक फ्रेंड्स एंड स्पीक टू देम एंड सी, अगर आप नहीं चाहते हो कि कोई आपको जज करे, वो भी तो बोल सकते हैं ना कि आप गुड पेरेंट नहीं हो, आप गुड मदर नहीं हो, आप गुड फादर नहीं हो। तो आप वो नहीं चाहते हो ना कि मेरा बच्चा मुझे जज करे वैसा। तो उसी तरीके से अपने बच्चे को जज मत करो, उसको सही और गलत सिखाने का तरीका सीख लो कि हाँ भाई, मैं उसको रॉन्ग नहीं बोलूंगा कि यू आर रॉन्ग, हम इसको ये बोलेंगे कि अंडरस्टैंड वेदर, रिफ्लेक्ट ऑन योर सेल्फ कि वेदर यू हैव टेकन अ राइट चॉइस। तो उससे डिफरेंस आता है बोलने में, तो फिर बच्चे को वो हर्ट नहीं होता है। तो ट्राई टू डू दैट। एनी अदर क्वेश्चन कमिंग? नथिंग? सो वी वाइंड अप। प्रैक्टिसेस करते रहो, मैजिक्स क्रिएट करते रहो अपनी लाइफ में, मैजिक्स होते हैं, बिलीव रखो। और जो भी छोटे छोटे मैजिक्स भी होते हैं ना, उसको शेयर करना शुरू करो। छोटे मैजिक्स बड़े मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे, छोटे मैजिक्स और बड़े मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे, बड़े मैजिक्स उससे और बड़े मैजिक्स को अट्रैक्ट करेंगे। दिस इज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो शेयर करना सीखो। हम तो खुला बोलते हैं, हम इधर जा रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम ये, आई नेवर, पहले वो था क्योंकि मम्मी पापा ने डाला हुआ था, नजर लगती है, ये होता है, ये लिमिटिंग बिलीव्स रहते हैं हमारे। और जब से मैंने मिरर बुक किया ये समझ में आया, उसके बाद से आई हैव स्टॉप क्यों ना कि नजर लगती है ये होता है। और जो बोलते हैं ना, तो मैं उसका एक कान से सुन लेती हूँ, आई डोंट आर्ग्यू विद देम। मैं बोलती हूँ हाँ हाँ, एक कान से सुनती हूँ, दूसरे कान से निकाल देती हूँ। बिकॉज ऊपर वाले ने तुमको इतना ऐसा क्या बनाया कि तुमको ही नजर लग रही है, हम अंबानी थोड़ी है। फिर अंबानी को तो पहले नजर लगनी चाहिए, बच्चन जी तो पहले नजर लगनी चाहिए, शाहरुख खान को तो पहले नजर लगनी चाहिए। वो लोग खुल खुल के बोलते हैं, उन्होंने तो मन्नत बनाया हुआ है, फिर उनके बगले को तो पहले नजर लगनी चाहिए। जब उनको नहीं लगती है तो हम तो क्या है। So we have limiting beliefs. It is like the more you share, the more you care, आपका वो increase होता है। Give power to your dreams. Okay? So say I am a powerful being. Every day बोलो I am blessed. मैंने उस दिन भी बोला था, रोज जब सुबह में उठते हो बोलो I am blessed. आंखें बंद करके फील करो कि आई एम ब्लेस्ड, यार मेरे पास इतनी सारी चीजें हैं।
और वो चीजों को आपको अबंडेंस में वो बिलीव कैसे लाना कि अपनी पलंग को देखो, वाह मेरे पास पलंग है, मेरे पास तकिया है, मेरे पास पानी है। क्योंकि आप जब ये चीजों को बार 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 अपने मन में वो अबंडेंस वाली फीलिंग लाते हो ना, कि आपके पास टेबल है, पानी की बोतल है, लैपटॉप है, चेयर है, टेबल है, वो माइंडसेट आपका चेंज होना शुरू होता है कि यस मेरे पास इतनी सारी चीजें है यार। एंड फिर वो जो आप माइंडसेट क्रिएट कर रहे हो ना, जो आप थॉट आपके अंदर डाल रहे हो कि इतनी सारी चीजें हैं, वो सबकॉन्शियस माइंड और आपको फिर देना शुरू करता है और आपको उस तरफ लेके जाता है कि आप अट्रैक्ट करो, आप अट्रैक्ट करो, आप अट्रैक्ट करो। सो यू बिकम अ मैग्नेट, दैट इज व्हाट शी सेड इन दिस बुक ऑल्सो, दैट आपको मैग्नेट बनना है कि आप खुद ही अट्रैक्ट करना शुरू करते। जैसे मैंने बोला कल भी कि आई हैव नॉट अट्रैक्टिंग माई होली प्लेस, आई एम गोइंग नाउ, आई हैव नॉट रिटन इन एनी ऑफ माई ड्रीम नाउ, बट इट हैपेंड सामने से। तो बिकॉज यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग, आपकी एनर्जी वैसी हो जाती है, राइट? सो ट्राई टू बी दैट। Are you also planning to go for like apart from your Umrah thing, आप वहाँ पे घूमने भी जाओगे? नहीं नहीं, आई एम ओनली गोइंग फॉर उम्रा, दैट इज रमजान पीरियड गोइंग ऑन, सो नो नो Okay. गोइंग हियर एंड देयर। No, why I'm saying is yesterday only, as I told you, I work with a travel agency. I attended a webinar on Saudi Arabia. So Saudi Arabia is like now Umrah जो भी travel करते हैं उनको they can even go as a tourist, मतलब उम्रा भी कर सकते हो, टूरिस्ट भी कर सकते हो, और टूरिस्ट वीजा पे जाते हो तो टूरिस्ट भी कर सकते हो और उम्रा भी कर सकते हो. So earlier it was only उम्रा वीजा वालों को सिर्फ उम्रा ही चलता था. So हाँ, it's a very beautiful place. Actually वो कल मैंने सीखा, इसीलिए मैंने पूछा आपको. नो आई हैव बीन देयर इन 21, गोइंग अगेन नाउ। अच्छा, this is your second Umrah. यस यस Wow, that's nice. That's nice. You're blessed. Yes, I'm blessed. I'm truly blessed. Actually, when you come into this practice, now you start attracting more good people, more good, friends, more good relatives. Your children become nice. That nothing else. So just be in this practices. This practices take you lots and lots of ahead. यानी health में भी मैंने miracles create किए हैं with this. Okay. So let's wind up. So thank you all for joining. God bless you all. And may God give you all that you require and fulfill all your dreams of whatever you have in your minds. Thank you, thank you, thank you. Thank you, and same to you. God bless you, Dee. Thank you. Thank you. Thank you. Thank Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, thank you. Ramya.